alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we're going to discuss about modernism movement. Okay, so let's delve into it. Modernism was a cultural, artistic, and literary movement that emerged in the late 19th and early 20th century, particularly flourishing between the 1910s and 1930s. Okay, it was marked by a break from traditional forms and conventions, driven by the belief that the old ways of understanding the world were inadequate in the rapidly changing modern world. ओके क्लियर. मॉडर्निज्म मूवमेंट जो है ये फ्लरिश कब करी 1910 से लेकर 30 तक. ओके, और पुराने ख्यालात को, बिलीफ सिस्टम को, ट्रेडिशनल फॉर्म्स को ब्रेक करना और जो न्यू बिलीफ्स को चेंज किया गया मॉडर्निज्म में. ठीक है, मॉडर्निज्म sought new ways to express human experiences, emphasizing experimentation, self-consciousness, and a rejection of established norms. Okay, clear? So now discuss its difference from Victorian and Romantic age. Okay, so रोमांटिक एज में क्या था कि उसका जो एस्पेक्ट था रोमांटिक एज का, उसका जो टाइम पीरियड था वो था लेट 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी. ठीक है, और उसमें की फोकसेस कौन कौन से थे? इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म. उसमें थीम्स कौन कौन से डिस्कस किए जाते थे? आइडियलिज्म, दी सबलाइम एंड पर्सनल एक्सप्रेशंस, एंड फॉर्म ट्रेडिशनल एंड लिरिकल फॉर्म्स. ठीक है, और उसमें स्टाइल कौन सा यूज किया जाता था? रोमांटिक एंड पोइटिक स्टाइल. क्लियर? तो ये थी रोमांटिक एज. नाउ what was Victorian age? Victorian time period was mid to late 19th century. ठीक है, its key focuses was on social issues, morality, industrialization, realism, and its themes was duty, progress, and societal norms. फॉर्म्स इसमें यूज की जाती थी रियलिस्ट एंड फॉर्मल, जबकि इसका स्टाइल कौन सा यूज किया जाता था इसमें? प्रोज ड्रिवन एंड मोरलिस्टिक्स. ओके, क्लियर? एंड जो मॉडर्न एज बाद में, अब जो मॉडर्न एज है उसमें टाइम पीरियड क्या था? लेट 19th टू मिड 20th सेंचुरी था. उसमें जो की फोकसेस थे, उसका जो की फोकस होता था वो था अलाइनेशन, डिसइल्यूजनमेंट, फ्रैगमेंटेशन. ओके, और इसमें जो थीम्स डिस्कस किए जाते थे वो थे लॉस ऑफ सर्टेनिटी, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, और इसमें इनोवेटिव एंड फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स यूज की जाती थी, जबकि स्टाइल इसका होता था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड नॉन लीनियर नैरेटिव. नाउ क्लियर? लेट्स डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, फर्स्ट कैरेक्टर इज इट्स फ्रेगमेंटेशन, breaks in structure, chronology, and forms to reflect the complexity of modern life. Okay, पुराने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया इसने. ठीक है, और क्रोनोलॉजी और फॉर्म्स को रिफ्लेक्ट किया जो कि मॉडर्न लाइफ को के लिए कम्प्लेक्सिटी रिफ्लेक्ट कर रही थी. ठीक है, देन इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपेरिमेंटेशन, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स, एम्फसाइज ऑन innovation in style and structure. Okay, clear? Third characteristics is alienation, focus on the themes of isolation, disillusionment, and loss of faith. Now clear? Characteristics is subjectivity, greater emphasis on individual consciousness and perspectives, often through techniques like stream of consciousness. Okay, clear? Fifth characteristic is ambiguity, use of open-ended narratives and unresolved conclusions. ठीक है? Point number 6 is focus on inner reality, exploration of the subconscious inspired by Freudian psychology. Clear? Point number 7 is modern technology and urban life. ठीक है? These are its characteristics. Okay?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 8 इज रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, यानी डिपार्चर फ्रॉम established norms and conventions in art, literature and thoughts, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 इज intertextuality, use of references, allusions and layers of meaning in text. Okay, clear? So these were its characteristics of modernism. Okay, now let's discuss its other relevant movement in modernism. Its first point is impressionism, yani focus on momentary perception and the subjective experience of reality. Okay, impressionism में क्या होता था कि फोकस जो होता था वो मोमेंटरी परसेप्शन पे होता था और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ रियलिटी पे होता था। और दूसरी मूवमेंट क्या थी, सिंबलिज्म, यानी सिंबलिज्म में क्या होता था, सिंबलिज्म का एम्फसाइज होता था सिंबॉलिक एंड सजेस्टिव इमेजरी पे ओवर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पे। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पे उसका फोकस नहीं होता था, उसका सिंबल और सब्जेक्टिव जो इमेज रिप्रेजेंट की जाती थी पोएम्स में उन पे होता था, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी थी, फ्यूचरिज्म, यानी सेलिब्रेशन ऑफ स्पीड, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, ठीक है। यानी फ्यूचर से मुतालिक जो चीजें फ्यूचर की तरफ हमें लेके जा सकती थी उन चीजों पे होता था, यानी सेलिब्रेशन ऑफ स्पीड, टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न लाइफ है वो फ्यूचर में कौन कौन सी चीजें यूज होंगी उस पे इसका फोकस होता था। जबकि शोरलिज्म में क्या होता था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एंड ड्रीम लाइक इमेजरी, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी थी, एक्सप्रेशनिज्म, यानी इसका एम्फसाइज किस पे होता था, इनर इमोशंस पे, एक्सपीरियंसेस ओवर एक्सटर्नल रियलिटी पे, ठीक है। क्यूबिज्म, क्यूबिज्म में क्या होता था कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन व्हिच इन्फ्लुएंस लिटरेरी फॉर्म्स। नाउ क्लियर। नोबल ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से जो नोबल ऑथर्स थे और उनके जो वर्क्स थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला नाम आता है टीएस इलियट का, ठीक है। दी वेस्टलैंड, दी लव सॉन्ग ऑफ एजे एल्फ्रेड रूफोर्क, जेम्स जॉयस का यूलाइसिस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डोलोवी, टू द लाइट हाउस, फ्रांस कफका का दी मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल इजरा पाउंड का कैंटोस, विलियम फॉकनर का दी साउंड एंड द फरी, एज आई ले डाइंग, मार्शल प्राउस्ट का था इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम और डीएस लॉरेंस का था सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव। नाउ क्लियर। तो ये कुछ नोटेबल ऑथर्स थे और उनके काम थे। कौन कौन से ऑथर थे मैं रिपीट कर देती हूँ, टीएस इलियट थे, जे एल्फ्रेड रूफरॉक, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, फ्रांस कफका, इजरा पाउंड एंड विलियम फॉकनर, मार्शल प्राउस्ट and D.S. Lawrence. Clear? Modernism actually represents a radical shift from tradition, ठीक है, focusing on innovation and the challenges of modern life. Okay? और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड थे, फ्रेगमेंटेशन थी, अलाइनेशन थी, सब्जेक्टिविटी थी, along with experimental techniques, ठीक है। और इसके इन्फ्लुएंस बाय मूवमेंट कौन कौन सी थी, लाइक इम्प्रेशनिज्म, सिंबलिज्म, शोरलिज्म थी, ठीक है। मॉडर्निज्म जो है वो रिफ्लेक्ट क्या करती है, वर्ड ट्रांसफॉर्म्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, वॉर एंड फिलोसॉफिकल अनसर्टिनिटी। क्लियर। एंड जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है वो किस चीज को चैलेंज करता है, कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग को, एड्रेसिंग इनर रियलिटीज एंड फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। और इसके अंदर जो नोटेबल ऑथर डिस्कस किए हैं कौन कौन से हैं, वो टीएस इलियट हैं, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। ये तो पायनियर थे ना, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क थे इनके, जो कि आज तक
रिमेन इन्फ्लुएंशियल हैं, ठीक है। और जो मॉडर्निज्म है उसने रीशेप दिया लिटरेचर को, मेकिंग इट रिफ्लेक्टिव ऑफ द क्योर एंड complexity of the 20th century. Clear? If you like the video, please like, subscribe and share. Leave your comment down below and like my videos. Thank you so much for watching.